Hello students. Uh, in this class, we are going to see the physiological factors determining speed. In the last class, we saw physiological factors which is determining strength, right? Today we will see what are the physiological factors determining speed. Okay. First, uh, speed is the next component of physical fitness which is determined by the following physiological factors like mobility of the nervous system. Okay, so our muscles contract and relax at a maximum possible speed as seen in sprinting events. This rapid contraction and relaxation of muscles is made possible by rapid excitation and inhibition of the concerned motor centers. This is called the mobility of the nervous system. The nervous system can maintain this rapid excitation and inhibition only for a few seconds, after which the excitation spreads to the neighboring centers, causing tension in the entire body. This results in decrease in speed. The mobility of the nervous system can be trained, but only to a limited extent. In fact, speed is determined to a great extent by genetic factors. मतलब नर्वस सिस्टम, मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम कैसे स्पीड में इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि our muscles contract and relax at a maximum possible speed as seen in sprinting events. हम लोगों का स्प्रिंटिंग इवेंट में हम लोगों का क्या होता है, तो बहुत जल्दी बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, मसल को वो इंफॉर्मेशन, वो एक्साइटमेंट क्रिएट करना जैसे जिससे वो मसल में एक्साइटेशन हो या जल्दी मूवमेंट करने के लिए हो, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो इंफॉर्मेशन हो या एक्साइटेशन क्रिएट करना नर्वस सिस्टम का काम है. तो नर्वस सिस्टम स्पीड में ऐसे ही क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग बाय ट्रेनिंग या सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं for a limited extent. Okay, in fact speed is determined to a great extent by genetic factors. ठीक है, जेनेटिकली स्पीड कोई कोई इंडिविजुअल को, कोई एक इंडिविजुअल को वो मतलब मिलते हैं, जैसे कि फास्ट ट्विच फाइबर या स्लो ट्विच फाइबर सब लोगों को नहीं मिलते हैं, या जिसके पास फास्ट ट्विच फाइबर होगा तो उसका स्पीड या स्ट्रेंथ मतलब जेनेटिकली वो थोड़ा बेहतर होता है बाकी स्लो ट्विच फाइबर से. ठीक है, तो नेक्स्ट मसल composition. Muscle with greater percentage of fast twitch fiber contract with more speed in comparison to muscles with lower percentage of fast twitch fibers. In fact, the muscle composition is genetically determined and cannot be changed by training. Different muscles of the body have different percentages of the of fast twitch fiber, so different parts of the body have different speed performances. मैंने जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें भी बोला था, जैसे कि फास्ट ट्विच फाइबर क्या होता है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, तो मसल कंपोजिशन मतलब कैसे बना होता है, तो फास्ट ट्विच फाइबर से होगा तो उसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फास्ट होता है तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है. ठीक है, तो स्लो ट्विच फाइबर से कंपैरिजन में वो फास्ट ट्विच फाइबर जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होता है. यही है पॉइंट 2, मसल कंपोजिशन. ठीक है, तो नेक्स्ट
explosive strength. For every quick and explosive movement, explosive strength is indispensable. For example, a quick punch in boxing cannot be delivered if the boxer lacks explosive strength. Explosive strength further depends on muscle composition, muscle size, and muscle coordination. It also depends on the metabolic process. Except muscle composition, the remaining factors can be improved through training, which in turn will improve the speed in a limited extent. The relative proportion of fast twitch fibers and also slow twitch fibers determines to a large extent the maximum possible speed with which a muscle can contract. This proportion of fibers is genetically determined. This implies that top sprinters have more percentage of fast twitch fibers, whereas endurance athletes have more percentage of slow twitch fibers, red fibers. Okay, मतलब explosive strength क्या होता है, मतलब हम लोग जैसे जब देखते हैं बॉक्सिंग में कितनी फास्ट वो मूवमेंट होता है, कितना फास्ट वो पांच निकलता है. ठीक है, हम लोगों का तो विक्रम को पता ही होगा शायद, वो तो किक बॉक्सिंग या टाइकांडो ये सब खेलता है कि नहीं. तो हम लोग देखते हैं कि बहुत फास्ट वो पांच निकल रहा है, या वो क्यों होता है, क्योंकि उस बंदे का वो एक्सप्लोसिव पावर है. ठीक है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और कहाँ कहाँ ज़रूरत होता है, जैसे कि वॉलीबॉल. तो वॉलीबॉल में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हम लोगों को चाहिए तो स्मैश करने के लिए, तो जंप करके बहुत बहुत फास्ट जंप करना होता है. ऐसा नहीं कि हम लोगों को बहुत टाइम मिलेंगे वो टेकअप करने के लिए हो या कुछ करने के लिए. बहुत फास्ट मूवमेंट होता है ये सब भी. ठीक है, जैसे बैडमिंटन. ठीक है, तो ये सब होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के कारण. जिन लोगों का एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होता है, तो बॉक्सर लोगों का भी, तो उसका बहुत स्पीडली पांच निकलता है. ठीक है, वो स्पीडली मूवमेंट कर सकता है. ठीक है, तो ये होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के कारण. तो लास्ट में बोले हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट टॉप स्प्रिंटर्स हैव मोर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर, whereas endurance athletes have more percentage of slow twitch fibers. ठीक है, तो फास्ट ट्विच फाइबर किन लोगों के पास होता है जनरली, जो स्प्रिंटर्स होता है, जो 100 मीटर भागते हैं, या जो 200 मीटर हो, या 400 मीटर, 800 मीटर, ये सब होता है स्प्रिंटिंग इवेंट. तो उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों के पास फास्ट ट्विच फाइबर ज़्यादा होता है, या फास्ट ट्विच फाइबर होता है उन लोगों के पास. तो इसके लिए उन लोगों का स्पीड जनरेट करने में या स्पीड ज़्यादा होने में वो मदद करता है. ठीक है, तो नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी. Flexibility also determines the speed to a certain extent. In fact, good flexibility allows maximum range of movement without much internal resistance. Flexibility also enables complete utilization of explosive strength. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वो हम लोग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जिन लोगों के पास होता है ज़्यादातर, तो उन लोगों के पास भी हम लोग देखते हैं. हम लोग एक पिक्चर देखा था, इसमें देखो स्पीड, इसके पास वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्पीड या फ्लेक्सिबिलिटी इन लोगों के पास भी ज़्यादा होता है. तुम लोग बैक लेग देखो कितना स्ट्रेच हो रहा है, कितने वो जॉइंट में कितना रेंज तक वो एक्सटेंड किया है, वो जो पिक्चर है उसमें देख रहे हैं. ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होने से क्या होता है, जॉइंट को वो मतलब क्या होता है, वो कैपेसिटी मिलता है, तो स्पीड जनरेट करने में या मसल को फुल स्ट्रेच करने के लिए, तो मतलब वो क्या करते हैं, मैक्सिमम रेंज तक वो जॉइंट को मूव करने के लिए मदद करता है फ्लेक्सिबिलिटी. तो उससे स्पीड जनरेट होता है. ठीक है, नेक्स्ट
biochemical reserves and metabolic power. So for maximum speed performance, the muscles require more amount of energy at a very high rate of consumption. For this purpose, the phosphogen ये एटीपी की बात कर रहे हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी एंड creatine phosphate CP stores in the muscle should be enough. If ATP and CP store is less in contracting muscle, the muscle contraction due to insufficient energy supply becomes slow after a short time. मतलब ATP और CP ये सब इन लोग इसका काम क्या होता है, मसल को अच्छे तरह से एनर्जी प्रोवाइड करना. ठीक है, जब मसल में जो एनर्जी एटीपी कम होगा तो उससे क्या होगा, हम लोग कोई एक्टिविटी बहुत फास्ट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जब एनर्जी अच्छे से प्रोवाइड नहीं होगा तो हम लोग का वो परफॉर्मेंस एक लेवल तक जाएगा, उसके बाद हम लोग का रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो एनर्जी जब मसल में कंटिन्यू वो मतलब क्या होता है सप्लाई होता रहता है तो हम लोगों का वो वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ जाता है. स्लोली हम लोग वो काम लंबे समय तक कर सकते हैं. इसलिए लास्ट में क्या बोल रहे हैं, जो एनर्जी है वो एनर्जी मसल को पहुंचना भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर होता है. ठीक है, तो उससे स्पीड मतलब उसमें स्पीड में इफेक्ट डालते हैं. ठीक है, जब हम लोग कोई फुल मूवमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, स्पीड में क्या होता है, बहुत फास्ट हम लोग भागते हैं तो उसके लिए बहुत एनर्जी ज़रूरत होता है बॉडी के लिए. तो ये एटीपी या सीपी ये सब क्या काम करता है, वो एनर्जी मसल को प्रोवाइड करना या एनर्जी मसल में रहना वो काम देखते हैं. तो उससे क्या होता है, वो हम लोग बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ वो एक्टिविटी करते हैं तो करने के लिए मदद करता है. ठीक है, जब एनर्जी लेस हो जाता है मसल से तो वो काम हम लोगों का स्लोली रिड्यूस हो जाता है. जो पहले हम लोग स्पीड के साथ कर रहे थे उसी मोशन के साथ उसी स्पीड के साथ बाकी हम लोग काम नहीं कर सकते. ठीक है, तो द एनर्जी सप्लाई ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सर्टेन enzymes which increase the metabolic power. The amount of ATP, CP and rate of energy supply can be enhanced by training. Therefore, it can be said that the biochemical reserve and metabolic power determine the speed. Okay? तो ये सब है physiological factors who is determining the speed. ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा ये सब. तो we will see again in the next class physiological factors who is determining endurance. ठीक है, थैंक यू.